Assalamu alaikum students. We were on lesson 1 Nicobobinus. So students, let's complete our exercise today with part C, learning about language, page 12, and the topic we are going to discuss is idiomatic language. Let's read out further to know that what is it all about. Here we have a sentence from the story. So they set off through the early morning town. लिहाजा वो सुबह सवेरे टाउन से रवाना हुए. When they got to the end of the narrow street where they lived, जब वो तंग गली के आखिर तक पहुँचे जहाँ वो रहते थे, they met a night watchman. वो रात के चौकीदार से मिले, who said, जिसने कहा, where are you two going at this hour? तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? Let's see why they have mentioned this sentence. In this sentence, the phrase set off means began a journey. इस जुमले में जो फ्रेज set off यूज़ की गई है उसका मतलब हमें यहाँ बताया जा रहा है. Like set off means began a journey. सफ़र को शुरू किया. We call such an expression an idiom. इस तरह के एक्सप्रेशन को हम idiom बोलते हैं. There are many idiomatic expressions in English. इंग्लिश में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत से ऐसे idiomatic expressions होते हैं. So here they have introduced a new term for us which is idiom. So here we need to know that what are idioms actually. Simple language में हम idioms को मुहावरात भी बोल सकते हैं. But one thing is clear that idioms exist in every language. Idioms हर ज़ुबान में मौजूद होते हैं. They are words or phrases that are not meant to be taken literally. तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको हम लिटरली डिफ़ाइन नहीं करते, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इनके वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स हम लोग नहीं यूज़ करते. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लाइक इफ़ यू से दैट समवन हैज़ कोल्ड फीट, सो हियर इट डजंट मीन दैट देयर टोज आर एक्चुअली कोल्ड. उनके पाँव एक्चुअली ठंडे हैं. इसका ऐसा मतलब हरगिज़ नहीं होगा. रादर दे आर नर्वस अबाउट समथिंग. बल्कि इसका ये मतलब होगा कि वो किसी चीज़ के बारे में नर्वस है. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट समवन हैज़ कोल्ड फीट. So through the example of this sentence that they have mentioned from the story, we get to know about idiomatic language. Like with the addition of a preposition with a word, meaning of that word or phrase changes. Let's read further to know more about it. Look at the ways in which the word set is used in the following. So here we have examples, or we can say that we have introduced with, or we are introduced with different ways to use the word set along with the different prepositions. So the first one is set about something. It means begin, शुरू करना. When Mrs. Ali got home, जब मिसेस अली घर पहुंची, she set about preparing dinner for her family. उन्होंने अपनी फैमिली के लिए डिनर बनाना शुरू किया. Set someone back. It means delay, ताख़ीर. This puncture is going to set us back 1 hour. इस पंक्चर से हमें 1 घंटा ताख़ीर होने वाली है. Next on page 13, set in. It also means begin, शुरू करना. The winter has set in early this year. So we use set in जब हमने बताना हो पर्टिकुलरली कि अगर कोई चीज़ शुरू हुई है तो वो कहाँ हुई है या कब हुई है. जैसे यहाँ बताया गया है कि इस साल सर्दियाँ जल्दी शुरू हुई. Set someone off. It means cause to begin. किसी चीज़ के शुरू होने की वजह बनना. If you laugh at any of Rahim's jokes, it will set him off telling jokes all night. अगर आप राहिम के किसी भी जोक पर हंसते हैं तो इससे वो पूरी रात जोक्स सुनाएगा या बताएगा. लाइक वो वजह बनेगी इस चीज़ की कि वो नेक्स्ट पूरी रात जोक सुनाता रहेगा. सेट समथिंग ऑफ. इट मीन्स कॉज टू एक्सप्लोड. किसी
धमाके की वजह बनना, कॉज टू बिगिन, किसी चीज़ के शुरू होने की वजह, मेक समथिंग लुक अट्रैक्टिव, किसी चीज़ को मज़ीद दिलकश बनाना. So we can use set something off in 3 different ways. To celebrate the new year, the people set off fireworks in the street. नए साल को मनाने के लिए लोग गलियों में आतिशबाजी करते हैं. The burglar broke the window. चोर ने खिड़की तोड़ी and set off the alarm. और अलार्म बजने की वजह बना. This blue ribbon sets off her dark hair beautifully. ये ब्लू रिबन उसके गहरे बालों को दिलकश बनाते हैं. नेक्स्ट इज सेट ऑन समवन. इट मीन्स अटैक, हमला करना. द बर्गलर वॉज सेट ऑन बाय द डॉग. चोर पर कुत्ते से हमला किया गया. सेट आउट बिगन विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग. कोई काम करने के इरादे के साथ शुरू करना. द मैन सेट आउट टू क्लीन द होल हाउस. आदमी पूरे घर को साफ करने के लिए तैयार हुआ, बट ओनली क्लीन्ड वन रूम, लेकिन सिर्फ एक कमरा साफ किया. सेट टू स्टार्ट एनर्जेटिकली, जोशो खरोश से शुरू करना. इफ़ यू सेट टू, अगर आप एनर्जेटिकली शुरू करते हैं, यू कैन फिनिश द वर्क टुडे, आप आज ही काम ख़त्म कर सकते हैं. सेट अप स्टैब्लिश वन सेल्फ इन अ बिजनेस और प्रोफेशन, प्लेस इन पोजिशन. किसी का एक बिजनेस प्रोफेशन में एक मुकाम इस्टेब्लिश करना. मिस्टर शेर हैज़ सेट अप हिज सन एज अ बुक सेलर. मिस्टर शेर ने अपने बेटे को एक बुक सेलर के तौर पर इस्टेब्लिश किया. एवरी डे द मैन सेट्स अप हिज लिटिल स्टॉल ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर. हर रोज़ आदमी गली के कोने पर अपना छोटा सा स्टॉल लगाता है. सो वी जस्ट गॉट टू नो the ways in which the word set is used. Now what we need to do further is write one sentence of your own for each of the phrases above. We need to write a sentence of our own for each of the phrases we have discussed here. So starting with the first one, set about. He set about the task at once. उसने काम फौरी शुरू किया. Set back. The traffic jam set us back about an hour. Or we can say the traffic jam will set us back about an hour. कि ट्रैफिक जैम हमें 1 घंटा डिले करेगा, या इससे हमें 1 घंटे तक तकरीबन ताख़ीर होगी. Set in. The story is set in a small town. कहानी एक छोटे कस्बे में शुरू हुई. Set off. If you open this door, it will set off the fire alarm. अगर आप इस दरवाज़े को खोलते हैं, ये फायर अलार्म के बजने की वजह बनेगा. सेट ऑफ इन द सेंस ऑफ सेट समथिंग ऑफ. किड्स वर सेटिंग फायरवर्क्स ऑफ. बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे. सेट ऑन. ही वॉज सेट ऑन बाय रॉबर्स. उस पर रॉबर्स की तरफ से हमला किया गया. सेट आउट. आयशा सेट आउट टू एक्सप्लोर द हाउस. आयशा घर को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हुई. सेट टू. ही इज़ सेट टू कंप्लीट हिज वर्क. वो जोशो खरोश से अपना काम मुकम्मल करने लगा. ही सेट अप. ही सेट अप अ फाइन एग्जाम्पल. उसने एक उम्दा मिसाल कायम की. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ वी हैव यूज्ड idioms in our sentences. You can note them down on your notebooks or books. That was all for today. Thank you so much.